student, in this video I will talk about for what is the limiting reactant or limiting reagent and also about some stoichiometric calculation. So let's come on. First I will talk about for what is the limiting reagent or limiting reactant. You know very well, in a chemical reaction a reactant changes into the product. So you have to find that in the given reaction which reactant are present in a lesser amount, and that reactant will be limiting reactant or limiting reagent. Clear? So first I will talk about for what is the definition of the limiting reagent or limiting reactant. You can see here the reactant which is present in lesser amount during a reaction is known as the limiting reagent. Suppose any reaction or being takes place, so in the reaction the reactant and product both will be present. So if the two reactant are given, out of these two reactant one will be in excess amount and second one will be in lesser amount. So the reactant which are present in a lesser amount in the reaction are considered as the limiting reactant or limiting reagent. Clear? Since it limits, also known as limiting reagent, and since it limits the participations of the other reactant, since it limits, and when one of the reactant will present in lesser amount, then the reaction will be stopped, or it will limit the participation of the other reactant in the reaction and also the product of the reaction. Clear? I will explain the example of the limiting reactant by taking a suitable example. You know very well, in LPG cylinder the gas which are present, which is known as the butane, and suppose when our LPG cylinder becomes or when the gas will be totally used, then cylinder will be empty. Clear? And in towards the stove a large number of holes are present. Clear? And these holes are occupied by the oxygen molecule. Clear? Because you know that oxygen helps in burning of the gas. Clear? So when our LPG cylinder becomes empty and the oxygen molecule which are already present inside the holes, so which one will be the limiting reagent, butane or oxygen? You will say that butane will be our limiting reagent or limiting reactant because it is totally used, understand, or it is present in lesser amount, whether the oxygen is present in the excess amount. Clear? So the limiting reagent here butane. Clear? So let's come on. There is a combustion reaction of methane. This is the CH4, that is methane, and 2O2, and this is an example for the combustion reaction CO2 and H2O. I will talk about for the reactant side, not towards the product side, because I have to find which one is the limiting reactant or limiting reagent. So methane have mass 16 gram and oxygen molecule have 32 gram. So 2 into 32 is equal to 64 gram. So I will compare these two values, 16 gram and in 64 gram. Which one value is lesser, or which reactant have lesser amount? You will say that methane. Clear? So methane will be here limiting reactant or limiting reagent. Clear? Let's come on with some other example. What is the limiting reactant? ओके स्टूडेंट, तो हम एक एग्जांपल या एक क्वेश्चन के थ्रू इस लिमिटिंग रिएक्टेंट या लिमिटिंग रिएजेंट को समझेंगे. मान लीजिए ये कोई रिएक्शन है A+B2, ये चेंज हो रहा है AB2 में. अगर हम ये देखें कि यहाँ पर A जो है वो फ्री स्टेट में है, तो हम इसको एटम हमने लिख दिया. ये दो एटम B की इसमें प्रेजेंट है. क्लियर है? तो ये मॉलिक्यूल हो गया. यहाँ पर A के एटम और B के एटम दोनों प्रेजेंट है, तो इसको भी मैंने मॉलिक्यूल, यानी ये एटम हो गया, ये मॉलिक्यूल हो गया, ये भी मॉलिक्यूल हो गया. ठीक है? सिंपल में अगर देखा जाए तो ये 1 मोल है, ये भी 1 मोल है और ये भी 1 मोल है. क्लियर? अब क्वेश्चन आपको ये दिया गया है फर्स्ट पॉइंट कि
आपको फाइंड करना है कि अगर 300 एटम्स ऑफ ए प्लस 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ B2, अगर ये पॉइंट दिया गया है तो इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन होगा। तो आप देख सकते हो कि 1 मोल अगर एटम है तो 1 मोल मॉलिक्यूल भी हमें चाहिए, क्योंकि दोनों का नंबर ऑफ मोल इक्वल है। ठीक है, अब यहां से आप देखिए एटम कितना है 300, तो 300 एटम है तो मॉलिक्यूल भी कितना होना चाहिए 300 ही होना चाहिए, लेकिन यहां कितना दिया गया है 200। क्लियर, तो इस दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो लेसर अमाउंट में कौन है ये 200। क्लियर, क्योंकि 1 मोल एटम और 1 मोल एटम है तो 1 मोल मॉलिक्यूल भी होना चाहिए, तो इस बेस पर 300 एटम है तो 300 मॉलिक्यूल होना चाहिए, लेकिन 300 एटम तो है लेकिन मॉलिक्यूल हमारा कितना है 200 है, तो लेसर अमाउंट में मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो इसलिए यहाँ पर लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन हो जाएगा, यहाँ हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट या रिएजेंट हो जाएगा कौन B2। क्लियर, अब यहां आप देखिए ये 5 मोल ऑफ ए दिया है, यानी ए का 5 मोल है और B2 का कितना मोल है 2.5। सेम वही कॉन्सेप्ट, 1 मोल ये 1 मोल ये, तो 5 मोल ए और 2.5 मोल B2, तो लेसर अमाउंट में कौन हो गया B2 हो गया, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन हो जाएगा। क्लियर, थर्ड पॉइंट में आइए, थर्ड पॉइंट में दिया गया 100 एटम्स ऑफ ए और 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ B2, यानी ए और B2 दोनों इक्वल हो गए, 1 मोल का कॉन्सेप्ट यहाँ हो गया, तो यहाँ पर कोई भी लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं है। क्लियर, तो इस तरह से हम लिमिटिंग रिएक्टेंट और लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड आउट करते हैं क्वेश्चन में। क्लियर, अब हम बात करेंगे स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन के बारे में। यहां पर हम स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं, ये कैल्सिनेशन रिएक्शन है। इसमें आप देख रहे हो कि कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं जब हम, तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो ब्रेक हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। यहाँ हमने 100 ग्राम लिखा है क्योंकि पूरा ये जो CaCO3 जो मॉलिक्यूल है इसका जो मास होगा वो 100 आएगा, तो हमने ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिखा है इसका 100 ग्राम, इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास है 56 ग्राम, इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास है 44 ग्राम। अब इस रिएक्शन का इंपॉर्टेंस कहाँ है, जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा है, मान लीजिए आपको क्वेश्चन पूछ दिया गया है कि हाउ मच CO2 इज प्रोड्यूस्ड आफ्टर कैल्सिनेशन ऑफ 50 ग्राम ऑफ CaCO3, यानी अगर हम 50 ग्राम CaCO3 का कैल्सिनेशन करते हैं तो हमें कितना ग्राम CO2 मिलेगा। तो आप एक स्टेटमेंट बनाओगे, इसको सॉल्व कैसे करोगे, इसको सॉल्व करने के लिए ये जो ऊपर जो रिएक्शन है आप यही लिखोगे और इसमें आप लिखोगे क्या कि 100 ग्राम यानी 100 ग्राम कैल्शियम 100 ग्राम CaCO3 gives 44 ग्राम ऑफ CO2, यानी 100 ग्राम CaCO3 का कैल्कुलेशन अगर करते हैं हम तो कितना ग्राम CO2 मिल रहा है 44 ग्राम। सो क्वेश्चन में कितना है 50 ग्राम, सो 50 ग्राम ऑफ CaCO3 gives कितना हो जाएगा 50 इंटू 44 अपॉन 100, ये हो जाएगा 2 और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 22 ग्राम। क्लियर, तो ये 22 ग्राम जो है ये आंसर हो जाएगा। तो ये इस तरह के कैलकुलेशन को हम स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन कहते हैं और आप इस तरह का एग्जांपल आपके न्यूमेरिकल में गिवन है, आप वहां से देख सकते हो। ठीक है, अब हम अगले टॉपिक की बात करेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।